وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ مجھے چولیاں گاؤں کی تلاش تھی۔ رات کے اندھیرے میں مجھے یہ گاؤں نہیں مل سکتا تھا۔ میں ایک بار پھر کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا جہاں میں رات گزار سکوں۔ ایک جگہ کھیتوں میں مجھے رہٹ کا چاک دکھائی دیا۔ ستاروں کی روشنی میں مجھے چیزوں کے ہیولے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ رہٹ تھا مگر خاموش، کوئی وہاں پر نہیں تھا۔ ایک طرف ٹوٹا پھوٹا لکڑی کا تخت پڑا تھا۔ یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں اس پر فوراً لیٹ گیا اور اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ میرے ذہن میں شمشان بھومی والی عورت کا خیال آنے لگا۔ میں نے اپنی قوت ارادی سے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ میرا مشن ایک مقدس جہاد کا مشن تھا اور میں اپنے ذہن کو نفسانی آلودگیوں سے پاک رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے خدا کو یاد کیا، آنکھیں بند کی، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب 2-3 کتے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا مگر آسمان پر سفیدہ سحر پھوٹ رہا تھا۔ مشرق کی طرف ستاروں کی چمک ماند پڑ رہی تھی اور نیلی روشنی کی جھلکیاں نمودار ہو رہی تھیں۔ میرے وہاں سے نکل جانے کے لیے یہ بڑا اچھا وقت تھا۔ اگر میری آنکھ دن نکلے کھلتی تو اس بات کا امکان تھا کہ رہٹ پر کوئی کسان بیل لے کر آ جاتا۔ میں اٹھا اور جس سمت شمشان بھومی والی عورت نے اشارہ کیا تھا میں اس طرف چلنے لگا۔ سورج نکلنے تک میں ایک گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ کھیتوں میں سکھ ہل چلا رہے تھے۔ ایک آدمی سر پر فصل یا چارے کا گٹھا رکھے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ایک سکھ کھیت میں پانی لگا رہا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں بھی بے نیازی سے آگے گزر گیا۔ سامنے سے ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا چلا رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ چولیاں گاؤں کہاں ہے؟ وہ رک گیا اور بولا کہ یہی ہے۔ تم نے کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا نمبردار صاحب سے ملنا ہے۔ مل لوں گا، میرا خیال ہے وہ گھر پر ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں نمستے کر کے آگے چلا گیا۔ میں ٹھیک گاؤں میں پہنچا تھا۔ گاؤں کے دوسری طرف کیکر کے درختوں کے نیچے کچھ یکے کھڑے تھے۔ ایک یکے میں 2-3 عورتیں، ایک ہندو لالا اور ایک سکھ دیہاتی بیٹھا تھا۔ کوچوان بھی سکھ تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو دور ہی سے آواز دی، باؤ جی بیاسا جانا ہے تو آ جاؤ۔ بیاسا سے مراد بیاس گاؤں یا بیاس کا قصبہ یا شہر تھا۔ جو کچھ بھی تھا مجھے وہیں جانا تھا۔ میں یکے میں بیٹھ گیا۔ یکا چل پڑا۔ کوچوان نے مجھ سے 3 روپے کرایہ لیا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے کے نہایت تکلیف دہ سفر کے بعد یکے نے مجھے بیاس نام کے قصبے میں پہنچا دیا۔ اب تو یہ قصبہ ایک شہر بن گیا ہوگا، اس وقت یہ ایک قصبہ ہی تھا۔ یکا بیاس نام کے ریلوے اسٹیشن کے باہر اڈے پر جا کر رک گیا۔ معمولی سے دیہاتی اسٹیشن کی عمارت بالکل ویسی تھی جیسی دیہاتی اسٹیشنوں کی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دلی جانے والی پیسنجر ٹرین 1 گھنٹے بعد آنے والی ہے۔ وہاں مسافروں کا کوئی رش نہیں تھا۔ ٹکٹ میرے پاس پہلے سے موجود تھا۔ میری نگاہیں ماحول کا جائزہ لینے لگیں۔ وہاں پولیس والا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ ہندو سکھ مسافر پلیٹ فارم پر اپنی گٹھڑیاں اور ٹرنک رکھ کر بیٹھ گئے۔ کہیں سے ایک ٹی ٹی بھی آ گیا۔ اس نے ریلوے کی وردی پہنی ہوئی تھی اور پلیٹ فارم پر ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اتنے میں پیچھے کی جانب سے سگنل ڈاؤن ہو گیا۔ گاڑی آ رہی تھی۔ قلی بھی پہنچ گئے تھے۔ پیسنجر ٹرین چھک چھک کرتی آ گئی۔ سارے ڈبے 3rd کلاس کے تھے جو سواریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ گاڑی بیاس کے اس اسٹیشن پر 15-20 منٹ تک کھڑی رہی۔ میری نگاہیں پلیٹ فارم پر لگی رہی۔ یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں سے کوئی پولیس والا مجھے تلاش کرتا وہاں نہ آ جائے، مگر کوئی سپاہی دکھائی نہ دیا۔ انجن نے سیٹی دی اور ٹرین چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین ایک بہت بڑے دریا پر سے گزرنے لگی۔ معلوم ہوا کہ یہ دریائے بیاس ہے۔ خدا خدا کر کے لدھیانہ کا اسٹیشن آ گیا۔ یہ کافی بڑا اسٹیشن تھا۔ میں ڈبے میں ہی چھپ کر بیٹھا دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ کوئی پولیس والا ادھر نہ آئے۔ پلیٹ فارم پر مجھے 1-2 وردی والے سپاہی نظر آئے تھے مگر کسی نے میرے ڈبے کا رخ نہ کیا تھا۔ ٹرین جہاں دیر تک رکی رہی، آخر جب وہ چلی تو میری جان میں جان آئی۔ پیسنجر ٹرین ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ ہر اسٹیشن پر رکتی تھی اور اس کی رفتار بھی زیادہ نہیں تھی۔ لدھیانے کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے۔ بڑا شہر امبالہ آ گیا۔ یہاں بھی گاڑی دیر تک کھڑی رہی۔ یہاں سے چلی تو کہیں شام کے وقت کرنال کا بڑا شہر آیا۔ اس کے بعد پانی پت اور سونی پت کے شہر آئے اور وہ بھی گزر گئے۔ دلی کے اسٹیشن پر اترتے ہی میں نے موٹر رکشہ لیا اور سیدھا والد صاحب کے دوست ظہیر الدین صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور مجھے ڈانٹنے بھی لگے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے ایک فرضی کہانی گھڑ کر انہیں سنا دی۔ میرے پاسپورٹ پر دلی کا ویزا اگرچہ لگا ہوا تھا مگر جتنے دن مجھے وہاں ٹھہرنے کی اجازت تھی اس کی مدت گزر چکی تھی۔ ظہیر الدین صاحب کہنے لگے، میاں ویزے کی مدت کے بعد ٹھہرنا جرم ہے،
पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और मुझे भी परेशान कर सकती है। मैंने उन्हें कहा, अंकल आप परेशान ना हो, मैं कल वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। वो कहने लगे, मियाँ जाती दफ़ा तुम्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस तुम्हें वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने पर वहीं पकड़ लेगी। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मैंने चूं तूं करके रात ज़हीरुद्दीन साहब के घर पर गुजारी। दूसरे दिन अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराए, नहा धोकर शेव वगैरह बनाई। जितने इंडियन करेंसी के नोट मेरे पास बाकी रह गए थे उनमें से कुछ एक पाँव की जुराब में छुपाए, कुछ जैकेट की जेब में पासपोर्ट के साथ रख लिए। छोटा चाकू अभी तक मेरे पास ही था। ख्याल आया कि इसको यहीं कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि उसका अभी तक मुझे कोई मसरफ नजर नहीं आया था। फिर कुछ सोचकर उसे जेब में ही रहने दिया। ज़हीरुद्दीन साहब अपनी दुकान पर जा चुके थे। मैं भी कुछ देर बाद उनके मकान से निकल आया। अगरचे मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा लगा हुआ था, मगर जो कानूनी मुद्दत वहाँ क़याम की मुझे हासिल थी वो पूरी हो चुकी थी और अब मैं गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रह रहा था। मगर मैंने कोई परवाह न की और सीधा रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ये एक मोटर रिक्शा था और इस पर जर्द और नीला रंग किया हुआ था। स्टेशन पर से मैंने अपनी गाड़ी के बारे में मालूम किया। इंक्वायरी क्लर्क हिंदू खातून थी जिसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। उसने मुझे बताया कि दोपहर को एक गाड़ी बम्बई जाएगी। वो पैसेंजर ट्रेन है, हर स्टेशन पर ठहरेगी। शाम के 6:15 बजे बम्बई एक्सप्रेस का टाइम है। रन थ्रू गाड़ी है। मैं पैसेंजर ट्रेन से तंग आया हुआ था। मैंने बम्बई एक्सप्रेस पकड़ने का फैसला किया। उस औरत ने मेरे दरियाफ्त करने पर मुझे बताया कि ये ट्रेन दूसरे दिन दोपहर के बाद होशंगाबाद पहुंचेगी। मैं वापस ज़हीरुद्दीन साहब के मकान पर या उनकी दुकान पर आने की बजाय सीधा बादशाही मस्जिद पहुंच गया। ये मेरे नज़दीक सबसे महफूज जगह थी। मुझे यकीन हो गया था कि दिल्ली में मेरे पीछे खुफिया पुलिस का कोई आदमी नहीं लगा हुआ। ये सारा मुसलमानों का इलाका था। वहीं दोपहर के वक्त मैंने एक होटल में खाना खाया, उसके बाद वापस मस्जिद में आ गया। दोपहर के बाद जो नमाज होती है वो मैंने बादशाही मस्जिद या जामे मस्जिद में ही बाजमात पढ़ी। बम्बई एक्सप्रेस 6:15 बजे छूटती थी। मैं 1 घंटा पहले स्टेशन पर आ गया। अमृतसर से होशंगाबाद का जो 3rd क्लास का टिकट सैयद साहब ने मुझे लेकर दिया था वो मैंने गेट पर टिकट चेकर को बिल्कुल न दिखाया, ये सोचकर कि कहीं वो ये न पूछ बैठे कि इतने दिन मैं कहाँ रहा। अगरचे उसे पूछने की जरूरत नहीं थी और टिकट 15-20 रोज तक काम आ सकता था, फिर भी हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर मैं प्लेटफॉर्म का टिकट लेकर स्टेशन के अंदर आ गया। बम्बई एक्सप्रेस आ गई। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों में हलचल सी हो गई। मैं भी उठकर मुसाफिरों के हुजूम में घुस गया। गाड़ी पीछे से भरी हुई आई थी। 3rd क्लास के एक डिब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। पहले उसका इंजन बदला गया, फिर खुदा जाने उसके डिब्बों में कैसा कैसा सामान लादा जाने लगा। कोई आध पौन घंटे बाद इंजन ने विसल दिया, गाड़ी ने लालटेन की सब्ज रोशनी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। उस वक्त दिन डूब गया था और शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। मैं कोने वाली सीट पर दुबक कर बैठा रहा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। दिल्ली की आबादी बड़ी दूर तक फैली हुई थी। शहर के मकानों, कारखानों वगैरह की रोशनियां खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। वाकई दिल्ली बहुत फैला हुआ शहर था। उसके बाद हिंदुस्तान के कई दूसरे बड़े बड़े शहर आए। मैं जागता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। इससे पहले जब कभी मैं रेलगाड़ी में सफ़र किया करता था तो मुझे चलती रेलगाड़ी की आवाज़ से नींद आने लगती थी, मगर यहाँ नींद नहीं आ रही थी। दिल्ली के बाद बड़ा शहर गुड़गांव था, उसके बाद मिथिला, फिर भरतपुर और फिर आगरा का शहर आया। चांदनी रात नहीं थी, वरना लोग कह रहे थे कि रेलगाड़ी में दूर ताजमहल का मंजर नजर आया करता है। यहाँ ताजमहल की मशहूर तारीखी इमारत थी जो मुसलमान बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए बनवाई थी। मैंने हिंदुस्तान में और भी कई शानदार तारीखी इमारतें देखी जो मुसलमान बादशाहों ने बनवाई थी। हिंदू इन इमारतों को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। आगरा के बाद धूलपुर का स्टेशन आया, फिर ग्वालियर का शहर आ गया। उस वक्त रात तकरीबन गुजर चुकी थी और पौ फटने वाली थी। ग्वालियर शहर से गाड़ी चली तो मुझे नींद आ गई। मैंने सोते में झांसी और ललितपुर के शहर भी गुजर गए। दिन काफी चढ़ आया था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो मैंने उतरकर चाय और बंद मक्खन खाया। यही चीज हर छोटे स्टेशन पर मिल जाती थी। दोपहर तक ट्रेन जंगलों में से गुजरती रही। मैंने इससे पहले इतने बड़े बड़े जंगल नहीं देखे थे। एक मुसाफिर ने मुझे बताया कि ये जंगल शेर, हाथी और दूसरे दरिंदों से भरे हुए हैं। बाद में मुझे भी इसका तजुर्बा हो गया। ये पहाड़ी इलाका भी था और कहीं कहीं हरे भरे मैदान भी और खेत भी नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि आगे भोपाल का स्टेशन आ रहा है। मुझे दिल्ली स्टेशन पर ही बता दिया गया था कि भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आता है। मुझे होशंगाबाद ही उतरना था। चुनाचे मैं संभल कर बैठ गया।
इस दौरान किसी स्टेशन पर किसी पुलिस वाले ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। कोई इंटेलिजेंस का आदमी भी मेरे ताक़ुब में नहीं था। भोपाल पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए थे। चूंकि शुरू गर्मियों का मौसम था, इसलिए अभी दिन की रोशनी काफ़ी थी। यहाँ लाहौर और हमारे पंजाब वाला खुशबहार का मौसम बिल्कुल नहीं था। यहाँ गर्मी शुरू हो गई थी। ट्रेन के डिब्बे के पंखे दिन रात चलते थे। रात को भी हमारे पंजाब वाली खुनकी नहीं होती थी। भोपाल के बाद मेरे साथ बैठे हुए मुसाफिर ने, जो मुसलमान था और मुंबई जा रहा था, बताया कि भोपाल मुसलमान रियासत हुआ करती थी, मगर अब उस पर भी दूसरी रियासतों की तरह इंडिया की हुकूमत ने कब्जा कर लिया है। उसने ये भी बताया कि भोपाल के मुसलमान हुक्मरान ने पाकिस्तान के क़याम में बड़ी मदद दी थी और कायद आज़म अक्सर यहाँ आकर ठहरा करते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था, वो भी वालिए भोपाल के दोस्त थे और अक्सर भोपाल में आकर क़याम करते थे। होशंगाबाद का स्टेशन आया तो मैं रेलगाड़ी से उतर गया। इतना लंबा सफ़र तय किया था कि बैठे बैठे थक गया था। होशंगाबाद का स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे पास हरदा तक का टिकट था, मगर ये गाड़ी वहाँ नहीं ठहरती थी, इसलिए यहाँ उतर गया। यहाँ से मुझे लारी वगैरह पर सवार होकर हरदा जाना था। उस वक्त शाम का धुंधलका चारों तरफ फैल चुका था। स्टेशन से बाहर आकर मैंने एक छोटी सी दुकान में बैठकर खाना खाया और लारी अड्डे के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि हरदा के लिए आखिरी लारी कोई आधे घंटे तक रवाना होने वाली है। लारी अड्डे पर जल्दी जल्दी पहुंचा। लारी तैयार खड़ी थी, मुसाफिरों से भर रही थी। कुछ मुसाफिर छत पर भी थे और अपने सामान के पास बैठे थे। मैं भी लारी में बैठ गया। लारी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। कोई 1.5 घंटे के बाद लारी ने हरदा पहुंचा दिया। ये एक मामूली सा नीम पहाड़ी जंगलाती शहर था। अमृतसर में सैयद साहब ने बताया था कि यहाँ अनाज की बहुत बड़ी मंडी है। यही मुझे उस आदमी से मिलना था जिसका फर्जी नाम मैंने आपके आगे जमील लिया है। सैयद साहब ने बताया था कि जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप का आदमी है, मगर बड़ा पक्का मुसलमान और जिहाद कश्मीर में हिस्सा भी ले चुका है। जमील की वसातत से मुझे मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुंचना था। सैयद साहब ने मुझे उसका पूरा एड्रेस ज़बानी याद करा दिया था। हरदा शहर अगरचे छोटा सा था और छोटे छोटे बाजार थे, मगर काफ़ी बारौनक था। दुकानों और मकानों और बाजारों में रोशनियां हो रही थीं। अक्सर दुकानें अभी तक खुली थीं। कुछ होटल भी थे जिनमें फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। यहाँ कोई रक्षा नहीं था। एक तांगे वाले को जमील का एड्रेस बताकर कहा कि मुझे ले चलो। तांगा मुझे मुख्तलिफ बाजारों और एक छोटे से मैदान में से गुजार कर उस खास बाजार में ले आया जहाँ जमील नाम का आदमी रहता था। ये बाजार मुझे बड़ा पुरस्कार सा लगा। एक मंजिला क्वार्टर नुमा मकानों के आगे अंधेरा अंधेरा था। कहीं कहीं बरामदे में कोई औरत सीढ़ियों में या सतून के पास फर्श पर बैठी बीड़ी सिगरेट पीती नजर आई। कुछ आदमी भी इधर उधर मंडला रहे थे। एक पान वाले की दुकान से मैंने जमील के बारे में पूछा। उसने मुझे बड़े गौर से देखा और पान लगाते हुए कहा, भाई साहब पीछे चले जाएं, पीछे क्वार्टर है जमील दादा का। जमील दादा मुझे अपने क्वार्टर के बरामदे में ही मिल गया। वो चारपाई पर बैठा था। बरामदे में बल्ब की रोशनी हो रही थी। एक आदमी उसकी पिंडलियों पर तेल की मालिश कर रहा था। एक आदमी उसके बाजू को ऊपर करके दबा रहा था। जवान आदमी था, बाल घुंघरियाले थे, रंग गहरा सांवला। मैंने जाकर सलाम किया और कहा कि जी मुझे जमील साहब से मिलना है। जमील ने मुझे गौर से देखा और पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? मैं ही जमील हूँ, कहो क्या काम है? उसकी आवाज़ बड़ी रोबदार थी। मैंने सैयद साहब का नाम लेकर कहा कि मुझे अमृतसर से उन्होंने आपके पास भेजा है। सैयद साहब का नाम सुनकर जमील दादा ने दोनों आदमियों से कहा, जाओ जाकर बाहर बैठो और चाय पियो। मैंने उसे अपना नाम बताया। उसने कहा, बैठो भाई, यहाँ आ जाओ। खाना खाया तुमने कि नहीं? मैंने कहा, जी शुक्रिया, खाना मैंने होशंगाबाद के स्टेशन पर ही खा लिया था। जब उसके दोनों नौकर चले गए तो जमील ने मेरी तरफ थोड़ा सा झुक कर कहा, सैयद साहब का यहाँ किसी और के आगे नाम तो नहीं लिया? मैंने कहा, जी नहीं। मुझे खुद सैयद साहब ने भी मना किया था कि मेरा नाम सिवाय आपके और किसी के आगे न लूं। जमील ने मेरी बातों और ज़बान के लहजे से कुछ अंदाज़ा लगाते हुए कहा, लगता है तुम पंजाबी हो, मगर इंडिया के पंजाब में तो कोई मुसलमान नहीं है। मैंने कहा, जी हाँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये सुनकर जमील दादा एक पल के लिए मुझे तकता रहा। फिर उठकर उसने मुझे अपने गले लगाया, मुझसे गर्मजोशी से मुसाफा किया और अपने पास चारपाई पर मजीद करीब बिठाते हुए कहा, पाकिस्तान पर मेरी जान कुर्बान, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? यहाँ इस सच्ची दास्तान को सुनने वालों को ये बताना ज़रूरी है
کہ हमने सिर्फ हरदा शहर के जमील का नाम ही फर्जी नहीं रखा, बल्कि हरदा शहर भी हमने अपनी तरफ से लिखा है। मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का नाम भी ये नहीं, और वो भी जिला होशंगाबाद के जंगल में नहीं रहता। अगर ये दास्तान इंडिया की हुकूमत सुन भी ले और वहाँ छापा भी मार ले, तो ना उन्हें वहाँ कोई जमील मिलेगा, ना कमाल शाह कमांडो। ये दोनों पाकिस्तान के परिस्तार और इस्लाम के मुजाहिद दोनों अभी बफज़ल ताला जिंदा हैं। जमील साहब भी भारत के एक शहर में रह रहे हैं और मुजाहिद कमांडो कमाल शाह भी भारत के एक दूर उफ्तादा जंगल में इस उम्र में भी कश्मीरी मुजाहिदीन को कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मगर ये जंगल जिला होशंगाबाद का जंगल नहीं, असल जंगल का अब सिवाय कश्मीरी मुजाहिदीन के किसी को भी इल्म नहीं है। अब वापस पाकिस्तान के परिस्तार जमील दादा के पास आते हैं। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं किस गरज के लिए इंडिया आया हूँ और ये कि मैं जहाद कश्मीर में हिस्सा लेना और कमाल शाह साहब से कमांडो की ट्रेनिंग लेकर कश्मीर की जंग में बतौर कमांडो भारतीय जारहित का मुकाबला करना चाहता हूँ। जमील दादा ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमा और आंखों से लगाया। कहने लगे, अल्लाह ताला तुम्हें अपने नेक मकसद में कामयाब करे। तुम मुझसे बढ़कर खुशकिस्मत हो। मैं कश्मीर की लड़ाई ज्यादा देर नहीं लड़ सका, बस एक मजबूरी रास्ते में रुकावट बन गई। इतने में चाय आ गई। वो देर तक मुझसे पाकिस्तान के बारे में ही बातें करता रहा। मुझे हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी कि ये शख्स पाकिस्तान से इतनी दूर काफिरों के मुल्क में बैठा है और उसके दिल में इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का बेपनाह जज्बा मौजूद है। असल में ये खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम का रिश्ता था जिसने फासलों को समेट दिया था। और सैकड़ों मील दूर बैठा एक मुसलमान मुजाहिद पाकिस्तान के मुसलमानों के दिल की धड़कन सुन रहा था और पाकिस्तान की खातिर, कश्मीर की खातिर हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। रात गहरी होने लगी तो जमील दादा ने बरामदे में मेरा बिस्तर लगाकर पंखा चला दिया और कहने लगे कि तुम आराम करो, सुबह मुंह अंधेरे तुम्हें खुद लेकर कमाल शाह के पास जाऊंगा। उसने बरामदे की बत्ती बुझा दी। पंखे की हवा ने मच्छरों को मेरे पास ना आने दिया और मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। मुंह अंधेरे जमील दादा ने मुझे जगा दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। मैं मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया। जमील दादा ने 2 नाली बंदूक कांधे पर डाली। ये जंगल बड़े खतरनाक हैं, जंगली दरिंदों से अक्सर आमना सामना हो जाता है। मैं बंदूक के बगैर कभी यहाँ नहीं आता। शहर की आबादी पर पिछले पहर का अंधेरा छाया हुआ था। आसमान के मशरकी किनारों पर सुबह काजिब का हल्का हल्का नूर झलकने लगा था। ठंडी हवा चल रही थी। शहर के मुजाफात से निकलते ही जमील दादा मशरिक की समत खेतों में चलने लगा। मैं उसके पीछे चल रहा था। काफी देर तक हम खेतों में चलते गए। फिर खेत खत्म हो गए और छोटी छोटी सूखी घास का मैदान शुरू हो गया। इस मैदान के पार दूर से जंगल के दरख्तों के हजूले नजर आने लगे थे। जमील दादा ने उनकी तरफ इशारा किया और बोला, ये वस्ती हिंद के बड़े घने जंगल हैं। ये इतने घने हैं कि तजुर्बेकार शिकारी भी अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। वो भी गाइड के बगैर नहीं चलते। मगर तुम फिक्र न करो, मुझे एक एक दरख्त, एक एक मोड़, एक एक पत्थर का इल्म है। हम जंगल में दाखिल हो गए थे। पहले छोटे छोटे टीलों के पहलू से होकर चलते गए, फिर एक टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ आ गए। टीलों के दरमियान एक छोटा सा तालाब था जिसके किनारे एक जानिब हिरन और दूसरी जानिब एक भूरा रीछ पानी पी रहा था। जमील दादा ने रीछ की तरफ देखकर कहा, ये भूरा रीछ इस जंगल का सबसे खतरनाक दरिंदा है। किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उनकी जान नहीं छोड़ता। आदमी दरख्त पर चढ़ जाए तो ये दरख्त के नीचे बैठ जाता है और अपने शिकार के उतरने का इंतजार करता रहता है। मैंने कहा, इन जंगलों में शेर भी होते होंगे, आदमखोर शेर। जमील दादा बोला, हर शेर आदमखोर नहीं होता। शेर बहुत बूढ़ा हो जाए और अपने शिकार के पीछे ज्यादा तेज न भाग सके तो भूख मिटाने के लिए इंसानों पर हमले करने लगता है, क्योंकि जानवरों के मुकाबले में इंसान ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। एक बार उसे इंसानी खून की चाट लग जाए तो फिर वो आदमखोर बन जाता है। या किसी अनाड़ी शिकारी की गोली से अगर उसका कोई दांत टूट जाए या लंगड़ा हो जाए तब भी वो इंसानों पर हमला शुरू कर देता है और आदमखोर बन जाता है। वैसे आम शेर इंसान पर हमले में पहल नहीं करते। मैंने जमील से आखिर पूछ ही लिया कि कमाल शाह मुजाहिद कमांडो का ठिकाना अभी कितनी दूर है। जमील दादा ने मुस्कुराकर कहा, तुम जरूर थक गए होगे, मगर इसका जिक्र कमाल शाह के आगे न करना। वो ऐसे नौजवानों को अपना शागिर्द नहीं बनाते जो जंगल में चलते चलते थक जाते हैं। जब वो तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो 2 दिन में तुम्हें सबसे पहले घोड़े की तरह ताकतवर बनाएंगे। और उसके बाद क्या होगा दादा? मैंने पूछा। जमील दादा ने सांस लेते हुए कहा, कमाल शाह मुजाहिद कमांडो हैं, वो इस्लाम के शेर हैं।
वो तुम्हें भी इस्लाम का शेर बना देंगे। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को शेर बनने की ज़रूरत है। दुश्वार गुजार जंगल में चलते रहने की वजह से मेरा जिस्म पसीने में भीग गया था। गर्मी और हब्स भी जंगल में बहुत था। एक जगह रास्ते में पहाड़ी नदी आ गई। नदी का पाट चौड़ा था और उसमें छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। यहाँ हमने मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम किया और फिर आगे चल पड़े। कुछ दूर जाकर दरख्तों का घनापन छटने लगा। उनके दरमियान छोटी बड़ी चट्टानें आ गईं जो जमीन में से बाहर निकली हुई थी। जमील दादा अब संभल कर चलने लगा था। उसने एक जगह रुक कर चट्टानों का जायजा लिया, फिर सर हिलाकर बोला, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। हम चंद कदम आगे गए होंगे कि अचानक एक चट्टान के पीछे से एक आदमी निकलकर हमारे सामने आ गया। उस आदमी के हाथ में राइफल थी और अपने चेहरे पर इस तरह सब साफा बांध रखा था कि मुझे सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें नजर आईं। मैं घबरा गया कि हो सकता है ये कोई डाकू हो, मगर जमील दादा बड़े इत्मीनान से खड़े रहे। आदमी ने पूछा, कौन हो? जमील दादा ने जवाब दिया, कमांडर से कहो महमूद गजनवी के मुजाहिद आए हैं। उस आदमी ने दूसरा सवाल किया, काफिरों के कितने बुत तोड़ कर आए हो? जमील दादा ने फौरन कहा, 101। उस आदमी ने अपनी बंदूक की नाली नीचे कर ली और आगे चलते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जमील दादा ने मुझसे सरगोशी की, ये कमाल शाह के बॉडीगार्ड कमांडो हैं और मैंने हमारे दरमियान जो मुकालमे हुए हैं वो हमारे खुफिया इशारे थे जो सिर्फ शाह साहब के अपने आदमियों को ही मालूम है। वो आदमी हमें 2-3 चट्टानों के दरमियान से लेकर एक बड़ी चट्टान के पास ले आया जहाँ चट्टान के अंदर एक कुदरती गार बना हुआ था। गार के दहाने के आगे इस तरह का एक बॉडीगार्ड फौजी अंदाज में अटेंशन खड़ा था जिस तरह का बॉडीगार्ड हमारे आगे आगे चल रहा था। इस बॉडीगार्ड ने भी मुंह को सब्ज रंग के साफे से ढांप रखा था। हाथ में राइफल थी और कमर के गिर्द गोलियों की पट्टी बंधी थी। गार्ड ने हमें वहीं रुकने का इशारा किया और गार के दहाने पर खड़े बॉडीगार्ड से 2-3 बातें की। फिर वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला और हमारे पास आया और बोला, कमांडर ने तुम्हें बुलाया है, जाओ। जमील दादा मुझे लेकर गार में दाखिल हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।